Good afternoon, students. Today we are going to start with the Indian economy with the unit current challenges facing Indian economy. So far we have discussed the problem of poverty, unemployment, infrastructure, capital formation, and rural development as the challenges facing Indian economy. So there is one more challenge which is currently faced not only by India, but by almost all the countries of the world, which is environment and sustainable development. So this environmental crisis, it is not only disturbing, the environmentalists, but even the economists world all around. So that's why this chapter has been introduced in your curriculum of Indian economy. After studying this chapter, learning objectives dekhte hain iske kya hai. You will be able to first of all understand the concept of environment. What are the functions of environment? Then you will also be able to analyze the causes and effects of environmental degradation which is taking place these days. And you will also be able to understand the nature of environmental challenges facing India. क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सो हमारा मेन जो जिस कंटेक्स्ट में हमें पढ़ना है दैट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. सो क्या जो environmental challenges हम फेस कर रहे हैं उनकी नेचर क्या है, and also to relate the environmental issue in context of sustainable development. So by now you might not be aware of the meaning of the word sustainable development. आपने पढ़ी होती है 9th 10th में sustainable development, but इस चैप्टर में आपको अच्छे से पता चलेगा और environment के आप sustainable development के साथ relate कर पाएंगे. ठीक है. So first of all बेटे, what is the meaning of environment? हम environment किसको बोलते हैं? So environment बेटे, it refers to totality of all the resources surrounding us. तो यहाँ बुक से आप देखिए, environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of the resources. So जितना भी planetary inheritance, हमारा जो planet है, तो उससे हमने जो जो inherit किया है और जितने हमारे resources हैं उसका sum total basically environment होता है. All the sum total of external forces surrounding us is environment. So environment includes all the biotic as well as abiotic elements which influence each other. हमारे आसपास biotic elements भी हैं. Biotic means जिनमें life है. Bio words relates to life. तो all the living elements, plants हैं, animals हैं, fish है, birds हैं, ये सब living organisms हैं. ये सारे biotic elements. There are some abiotic elements also which surround us: earth, water, air, land. ठीक है. So even sunlight. ठीक है. ये सब mountains, hills, rocks, ये सब abiotic element है. So ये इनका sum total environment कहलाता है. So जब भी हम environment की study करेंगे, so it calls for the study of these elements as well as the interrelationship between these elements, biotic as well as abiotic. These are interdependent being. बेटे, water नहीं होगा तो life नहीं होगी. Water is an abiotic element, and if water, air, sunlight are not present, how would life be present? So these are interrelated. So whenever the study of environment calls for the study of interrelationship between these biotic and abiotic components of environment. ठीक है. Environment जो है वो बहुत एक important role play करता है even in the economic development of the country.
so far you might be saying कि ये कोई हम EVS पढ़ रहे हैं, हमारा कोई इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट थोड़ी है कि जो मैम हमें इकोनॉमिक्स के पीरियड में इन्वायरमेंट पढ़ा रही है। सो बेटे इन्वायरमेंट जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, प्ले करता है। बेसिकली ये कुछ फंक्शंस प्ले करता है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट? नंबर वन, it acts as a supplier of resources. Environment comprises of resources. Environment हमें resources देता है। Resources क्या होते हैं बेटे? Resources वो हैं जो inputs की तरह काम करते हैं। इन resources को use करके हम further output produce करते हैं। So whatever is produced, whatever you are consuming today, it is the result of input. अभी आप अगर कुछ खा पी भी रहे हैं तो सॉइल में अगर वो बना है, उगा है, ग्रो हुआ है, तभी आप उसको खा पी रहे हैं। या आपने कुछ पहना भी है, आपने कुछ, यू आर कंज्यूमिंग, लाइक यू आर वेयरिंग कॉटन, यू आर वेयरिंग वूल, ऑल दीज आर प्रोवाइडेड बाय, ये किसके बने हैं? ये रिसोर्सेज के बने हैं। ये रिसोर्सेज हमें एनवायरनमेंट देता है। रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि नेचर में रिप्लेनिश हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज कर सकते हैं, एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दीज रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। ये खत्म नहीं होंगे, हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ये बार बार नेचर इनको वापस दे देता है, ठीक है, रिप्लेनिश हो जाते हैं, रीन्यू हो जाते हैं। इनकी कंटिन्यूस सप्लाई एनवायरनमेंट करता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज इन द फॉरेस्ट, फिश इन द ओशन, ठीक है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। On the other hand, there are non-renewable resources. Non-renewable resources बेटे वो होते हैं which get exhausted with use, with extraction, जिसको आप extract कर रहे हो या use कर रहे हो, ये खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कोल है, ठीक है, कोल is a non-renewable resource, ऑयल, गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनको आप ऐसे नहीं यूज कर सकते कि करते जाओ और कोई आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे। दे विल गेट एग्जॉस्टेड विद यूज एंड एक्सट्रैक्शन। So whatever the resources, be these renewable resources or non-renewable resources, who is the supplier of these resources? Environment. So बेटे सोचो, environment हमें resources नहीं देता तो आज हम कैसे production output generate कर सकते? So ये सबसे important function है environment का कि ये हमें resources supply करता है। Then another, it assimilates waste. अब जब भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है या कंजम्पशन एक्टिविटी होती है, उससे वेस्ट जनरेट होता है। ये वेस्ट कहाँ जाता है? इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आप अपने घर में देख लो, आप अभी जाके अपनी किचन में देखो, देयर विल बी वन डस्टबिन, जिसको आप खोल के देखोगे तो उसमें किचन का सारा वेस्ट गार्बेज होगा। आपका एक और मम्मा ने कोई डस्टबिन लगाया होगा जिसमें आपका बाकी का वेस्ट जो है, जो आप जनरेट करते हो, जैसे आपने कुछ लिखा, वो आपको लगा ये ठीक नहीं है, आपने पेपर फोल्ड किया, क्रम्बल किया, उसको फेंक दिया। आपने सॉक्स निकाली, सॉक्स को पैकिंग में से निकाला, वो पैकिंग आपने डस्टबिन में फेंक दी। ये सब जब आप कंजम्पशन करते हो तो ये वेस्ट जनरेट होता है। सिमिलरली जब आप प्रोडक्शन करते हो तब भी वेस्ट जनरेट होता है। कोई भी एक्टिविटी आप देख लो, जब प्रोडक्शन होती है तो उसमें वेस्ट जनरेट होता ही होता है। तो ये वेस्ट कहाँ जाता है? सपोज करो आपके घर में, आपके स्कूल में यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, लंच ब्रेक के बाद आपने अपना फॉइल पेपर जो है वो आपको डस्टबिन में ही फेंकोगे, वही एब्जॉर्ब करेगा।
सपोजिंग वो नहीं है तो किस तरह से वो पड़ा रहेगा यहाँ पे एक साइड पे, और किस किस तरह से आपकी क्लासरूम या घर गंदा लगेगा, स्मेल देगा, और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी कंट्री या पूरी हमारे जो रिसोर्स इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो हमारी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटी से वेस्ट जनरेट होता है उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है। Third function is that it sustains life by providing genetic and biodiversity. Environment life sustain करता है। वाटर, मैंने पहले ही बोला एबियोटिक एलिमेंट्स जैसे कि सनलाइट है, एयर है, वाटर है, क्या इनके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन करते हो? नो। ठीक है, सो इन्वायरमेंट आपको लाइफ, आपकी लाइफ को सस्टेन करता है, आपको जेनेटिक और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स प्रोवाइड करता है, जो कि फूड चेन बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम चलता रहता है। Then it also provides aesthetic services like scenery. बेसिकली इन्वायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इनहेंस करता है। तो अगर आप कई बार लाइफ से ब्रेक चाहते हैं तो आप हिल स्टेशन चले जाते हैं, ठीक है, वहां पे आप नेचर को अपने आप को नेचर के इतने नजदीक पाते हैं, यू एंजॉय दी वाटरफॉल्स, यू एंजॉय दी हिल्स, यू एंजॉय दी सॉइल ऑफ दी लैंड। सो ये सब आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करते हैं, आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, now better environment is able to perform these functions without interruption as long as the demand on this functions is within its carrying capacity. अब environment इतना कुछ आपके लिए करता है, सपोज करो हम बात करते हैं, आपके मम्मा आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपको खाना देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपको जो भी जरूर, आपको पैसे देते हैं, ठीक है, बट वो तब तक ही कर पाएंगे ये सारे काम अगर आप वो काम जो है उनकी कैरिंग कैपेसिटी में रखो। अगर आप बोलोगे आपके सारे, आपका होमवर्क भी वही करने लग जाए, आपकी जगह पेपर भी वो देने चले जाए, वुड शी बी एबल टू डू इट? आप उनकी कैरिंग कैपेसिटी को अगर एक्सीड करोगे तो वो ये फंक्शंस नहीं परफॉर्म करेंगे। यानी हर एक की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, इसी तरह से एनवायरनमेंट की भी एक कैरिंग कैपेसिटी है। अब एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब दो चीजें, एक जो आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट से, जो ले रहे हो, वो रेट ऑफ रीजेनरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करो आप, मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, आप एक साल में 5 लाख पेड़ काट लेते हो और एक साल में सिर्फ 2 लाख पेड़ ग्रो हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब जिस रेट पे आप रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज मोर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेस, विच मीन्स यू आर नॉट विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी में रहने का मतलब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन is not above the rate of regeneration of resources. One thing. Second, waste which is generated as a result of production and consumption activity, that is within the assimilating capacity of the environment. ठीक है, आप जो वेस्ट जनरेट कर रहे हो, आप वो जो वेस्ट है वो इन्वायरमेंट, मैंने कहा इन्वायरमेंट वेस्ट को जनरेट एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करने की भी तो एक उसकी कैपेसिटी है। अगर हम कहें कि यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है तो आप लंच ब्रेक में ऐसे करना बेटे कि आपकी जो भी फॉइल पेपर है या जो भी आपका वेस्ट पील्स हैं वो आप इस डस्टबिन में डाल देना। तो बेटे अगर वो डस्टबिन ऊपर तक भर गया तो वो जो कूड़ा है वो बाहर आने लग जाएगा, गार्बेज बाहर आ जाएगा, which means you have exceeded assimilating capacity of the environment. It should not be so. अगर environment तभी आपके ये functions perform करेगा
अगर वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बीच में है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब दो बातें हैं, एक जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है दैट इज नॉट अबव द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन, सेकेंडली द वेस्ट जनरेटेड should be within the assimilating capacity of the environment. जब ऐसा नहीं होता तो environment अपना जो तीसरा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, लाइफ को सस्टेन करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन है environment का, ठीक है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा and it will result in environmental crisis. आपकी कंट्री में इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाएगा. बेसिकली इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज देयर. ये सिचुएशन आज हर जगह है, ठीक है. जो कंट्रीज हैं इनकी पॉपुलेशन, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है, जिस करके ये लोग अपने कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है, ये बहुत ज्यादा कंजम्पशन करने लग गए हैं और वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है. सेकेंडली प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन रिसोर्स की रीजनरेशन के रेट से एक्सीड कर गई है, ठीक है. रिसोर्सेज काफी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. हमारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है. सो वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस. समझ गए बेटे? मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. सेकेंडली वेस्ट जनरेटेड शुड बी विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. अब एब्जॉर्प्टिव और कैरिंग कैपेसिटी में डिफरेंस देखो क्या है. कैरिंग कैपेसिटी ये दो चीजें इंप्लाई करता है, ठीक है. एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब द एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन. जो डिग्रेडेशन हो रही है उसको एब्जॉर्ब तो करना ही पड़ेगा. एनवायरनमेंट का फंक्शन है बेटे वेस्ट को एब्जॉर्ब करना. तो हम ये नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा, नहीं. हम अब टीचिंग है, टीचर ये नहीं कह सकता हम टीच नहीं करेंगे, टीच तो करना ही है, ठीक है. अब एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है, वो ये नहीं कह रही कि टीचर को टीच करना बंद कर दो, लेकिन वे चेंज करने को कह रही है, ठीक है. तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है एनवायरनमेंट की एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, ठीक है. सो आज हम एनवायरमेंटल क्राइसिस की कगार पे हैं. हमारी जो पास्ट डेवलपमेंट है, जितनी भी हमने आज तक डेवलपमेंट की है, उससे हमारी रिवर्स पोल्यूट हो गई हैं, सूख गई हैं, ठीक है. और पानी जो है आज एक इकोनॉमिक गुड है, यानी कि बिकता है. There was a time when the price water was free. Today it is being sold, and there will come a time when water will be sold at a very very high price. अगर हम आज भी इस सिचुएशन को नहीं समझे तो, ठीक है. सो यहाँ तक बेटे अगर आपको कोई डाउट है यू कैन. ओके. सो बेटे क्योंकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनकी हम बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. ये एक्सट्रैक्शन ना सिर्फ इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव भी है. इंटेंसिव का मतलब आप उस पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और एक्सटेंसिव मतलब वास्ट एरिया पे एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है. सो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, हमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये रिसोर्स जो है ये रीजनरेट नहीं होगा तो इसकी हम एक्सट्रैक्शन ना करें या इसको हम विद इन लिमिट्स extract करें. But no, we have, without considering the fact that the resources are renewable or non-renewable, we have extracted these vital resources, and today we are compelled to spend huge amounts on technology and research to explore new resources, ठीक है. तो कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल कि हमने कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसको हमने इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया है और वो आज एक बहुत हाईली प्राइस्ड कमोडिटी बन गया है. तो एज अ रिजल्ट हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं ताकि हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकें. कुछ आ रहा है दिमाग में? यस, पेट्रोलियम, ठीक है. गुड मौलिक.
तो बेटे आज हम कितना रिसर्च के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं कि हमें कोई इसका सब्स्टिट्यूट, कोई बायोफ्यूल मिल जाए. So added to these are the health costs of the degraded environment quality. ये तो एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी ना कि आपको वो गुड इतना अब एक्सटिंक्ट होने के रास्ते पे है और आपको महंगा मिलेगा, आपको नया सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा. अब इसकी हेल्थ कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है. जब एनवायरनमेंट की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, यानी कि एयर की, वाटर की क्वालिटी जब बहुत ज्यादा पुअर होने लग जाती है, तो हेल्थ के ऊपर आपका हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. तो हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. आप देखते हो अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स जलंधर का मेंशन्ड होता है वो फुटबॉल चौक पे, तो आपको पता चलता है कि आपकी एयर क्वालिटी जो है अच्छी है या बुरी है ना. सो टू मेक मैटर्स worse, global environmental issues such as global warming and ozone depletion, they have also contributed to the financial commitments for the government. तो global level पे जो हमें environmental issues face करने पड़ते हैं, जैसे कि global warming है, ozone depletion है, ठीक है, इसके करके गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है. So but it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें देनी पड़ रही है. अगर हम देश की तरक्की कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? हम अपना एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं उसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कंट्री के लिए नए हैं? ठीक है. तो क्या जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी ये तभी से शुरू हो गए थे, या हमारे जब से हमारी कंट्री में एनवायरमेंट ये पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, या हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तब से ऐसा प्रॉब्लम ज्यादा आई है? सो बेटे ऑफ कोर्स के जो हमने पहले हम इतनी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं रहती थी, हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते थे, लेकिन जो रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन था दैट वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन, इसीलिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ी. बट विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो हमें जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उनकी ग्रोइंग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आउटपुट बढ़ानी पड़ी. तो ऑब्वियसली इनपुट यानी रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने पड़े, और तब से इसका माउंटिंग इफेक्ट यही रहा कि हमारा प्रोडक्शन, कंजम्पशन बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज बढ़ गया. कंजम्पशन बढ़ने के करके वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होने लग गया, हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एक्सीड हो गई. ठीक है. So what has happened today is the reversal of supply-demand relationship for environmental quality. We are now faced with the increasing demand for environmental resources, but their supply is limited due to overuse and misuse. So earlier क्या था बेटे? डिमांड कम थी इन रिसोर्सेज की, सप्लाई ज्यादा थी. लेकिन अब सप्लाई डिमांड का रिवर्सल हो गया है. अभी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड या रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई कम हो गई है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं, ओवर यूज कर चुके हैं, इवन मिस यूज भी कर चुके हैं. ठीक है. सो इसीलिए आज जो इन्वायरमेंटल इशू है वेस्ट जनरेशन का, दैट हैज बिकम क्रिटिकल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटे स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट. सो उससे पहले हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट बेटे, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह की है. पहली है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. आज हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह की फेस करनी पड़ रही हैं. वन इज प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड अनदर इज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन डिस्कस करते हैं. ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज पोल्यूशन?
Yes, you know what is pollution. So addition to the air, water, that elements when are added to the air, water, soil, which threatens human life और अदर लिविंग organisms, ठीक है, उनको हम उसको हम पोल्यूशन कहते हैं. सो पोल्यूशन कैन बी एयर पोल्यूशन, इट कुड बी वाटर पोल्यूशन, इट कुड बी सॉइल पोल्यूशन, इट कुड बी नॉइस पोल्यूशन. ठीक है. सो एयर पोल्यूशन मीन्स जब एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसी चीजें जब एयर में मिल जाती हैं तो उससे एयर पोल्यूशन आती है. सो एयर पोल्यूशन से हमें बहुत ज्यादा बीमारियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है. वाटर पोल्यूशन मीन्स कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय फॉरेन मैटर. इससे वाटर की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है. ठीक है. इसमें रिवर पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन, ये सब चीजें आती हैं. तो जो भी जनरली इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको हम कहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं? रिवर्स में, ओशंस में, स्ट्रीम्स में. सिमिलरली जो हमारे घर का वेस्ट जनरेट होता है जैसे कि जो सैनिटरी आपके जैसे वॉशरूम्स वगैरह का, टॉयलेट्स का जो वेस्ट है सैनिटेशन का, वो भी रिवर्स में जाकर ही मिलता है. तो इससे ड्रिंकिंग वाटर की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. देन थर्ड वन इज इट इज सॉइल पोल्यूशन. सो सॉइल पोल्यूशन जब जो सॉइल है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे फर्टाइल लेयर होती है. उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये चीजें मिली होती हैं. लेकिन सॉइल पोल्यूशन का मतलब ये टॉप लेयर जो है वो उड़ जाती है तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है. Noise pollution is also taking place. Noise pollution meaning thereby that unpleasant and undesirable sound levels which cause serious discomfort to all the living beings. So the time is up. We will do it tomorrow. That's all for today.